Yes, dear student, this is the lecture number 2 of ecology, and in the previous lecture we have discussed about the biomes, and now the second lecture is consist of बना हुआ है आपका abiotic factors of the ecosystem. We know that the term ecosystem was coined by the scientist A.G. Tinsley, and ecosystem means the sum total of the abiotic factors, abiotic component, or you can say non-living component, and the biotic component, or you can say living component. So sum total of abiotic and biotic component in a particular geographical region, which is being integrated by the exchange of energy and recycling of nutrient in the environment, collectively known as ecosystem. So this lecture is basically depend upon the abiotic factors. Now my dear student, in case of non-living component of ecosystem, there are 4 components: temperature, water, light and soil. Clear? Temperature, water, light and soil. Now first we are starting with the temperature. The most important neat question among these 4, which one is the more ecologically relevant factor? Which one is the more ecologically relevant environmental factor? The answer is the temperature. This is your NEET. नीट क्वेश्चन आ चुका है एक बार नीट में, चारों ऑप्शन दे दिए उसने और उसने एक ही बात पूछी, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट इकोलॉजिकली रिलीवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर. तो मोस्ट रिलीवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर इज द टेम्परेचर. वाई रिलीवेंट ये हम लोग आगे देखते हैं. बात करते हैं temperature. It depend upon the season. You know that seasons are varies in a year, so temperature is also varies place to place according to their season. For example, that the temperature is increases, or you can say temperature is decreases progressively equator to pole, or you can say increases pole to equator, decreases equator to pole and plain to high mountain, और इंक्रीजेज इसका उल्टा करिए, क्योंकि नीट ने क्वेश्चन पूछा है कि द टेम्परेचर इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज, तब आपको आंसर देना है फ्रॉम पोल टू इक्वेटर या फ्रॉम हाई माउंटेन रीजन टू प्लेन. इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि टेम्परेचर इज डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली, नाउ द राइट ऑप्शन इज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल डिक्रीजेज एंड फ्रॉम प्लेन टू हाई माउंटेन डिक्रीजेज. यू गॉट इट माई पॉइंट. यहाँ पर ये दूसरा नीट का क्वेश्चन था जो उसने टेम्परेचर के लिए पूछ लिया कि टेम्परेचर कब इंक्रीज होता है, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज किधर होगा, कब डिक्रीज होगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, and or you can say when we move from plain to high mountain, then the temperature it decreases. और अगर क्वेश्चन नीट में आता है कि when the temperature is कब इंक्रीज होगा, when रिवर्स कर दीजिए कंडीशन, when the temperature is increases progressively from pole to equator, or you can say high mountain to plain. क्लियर हुआ? सेकेंड पॉइंट आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट था नीट के लिए. नाउ द थर्ड point, that this temperature is varies from sub-zero level in polar region to the about 50 degrees Celsius at high altitude in tropical desert in summer. अभी वेरिएशन कितना हो सकता है टेम्परेचर का? इस पूरे इकोसिस्टम में जो टेम्परेचर है उसकी वेरिएशन कितनी हो सकती है? सब जीरो लेवल भी हो सकता है, वो पोलर रीजन में होगा, वो पोलर एरिया में होगा, और 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है उन डेजर्ट में समर के दिनों में जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है। क्लियर बात हुई? तो कितना वेरिएशन हुआ?
फ्रॉम सब जीरो लेवल। आ चुका है नीट में एक बार क्वेश्चन कि इन केस ऑफ पोलर रीजन द टेम्परेचर फ्रॉम, एंड द आंसर इज द सब जीरो लेवल। आंसर इज द सब जीरो लेवल इन पोलर रीजन टू द 50 डिग्री सेल्सियस एट हाई एल्टीट्यूड इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर। बच्चों, वाई इट इज़ वेरी रिलीवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर? Why it is a most ecologically relevant environmental factor? Reason is that we know that our body is totally depend upon the metabolic process, and for the various metabolic processes and physiological processes there are so many enzymes, and we know that कि enzymes are very sensitive to temperature. Okay, now the temperature can affect the kinetics of enzymes. तो अगर टेम्परेचर अफेक्ट करता काइनेटिक ऑफ एंजाइम्स की, दो इट इज़ द बेसल मेटाबॉलिज्म, और यू कैन से अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कैन आल्सो बी अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। दिस इज द मेन रीजन स्टूडेंट, टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। दिस इज द फर्स्ट नीट क्वेश्चन। A very first line of the NCERT is the most important question for your NEET. Which one among these four is the most ecologically relevant environmental factor? Answer is temperature. आपने देखा temperature can affect the kinetic of enzymes, though it is the metabolism of the body, or you can say the various physiological functions which are enzyme dependent, they are affected when the temperature affect the kinetic of enzymes. क्लियर बात हो गई? जिस समय एंजाइम्स आप जानते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, तो अगर टेम्परेचर ही चेंज हो जाएगा तो एंजाइम्स की एक्टिविटी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस कैपेसिटी, बहुत इम्पॉर्टेंट बात नीट के लिए, मैंने लास्ट लाइन में दो वर्ड लिखे हैं, यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल। मैंने दो वर्ड लिखे हैं, स्टीनोथर्मल एंड यूरीथर्मल। आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यूरीथर्मल्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो टॉलरेट कर सकते हैं हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर। means that those organisms which can tolerate high range of temperature, they are known as eurythermal. They are known as यूरीथर्मल। क्लियर हुआ? नाउ दोज ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ द टेम्परेचर, नाउ दे आर नोन एज स्टीनोथर्मल। दो वर्ड पे आपको ध्यान होगा, थर्मल वर्ड लगा है, आपको टेम्परेचर यूज करना है, यूरी वर्ड लगा है, इसके मतलब वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है उनकी बॉडी, और स्टीनो लगा है मीन्स दैट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर tolerance range. Means eurythermals are those which can tolerate high range of temperature, and stenothermal are those organisms which can tolerate narrow range of the temperature. Clear? Now this is very important for your NEET. मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ NEET, यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल। तो आपने देखा कि टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। नाउ पूछ सकता है कि डिक्रीज द टेम्परेचर इज डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली, कहाँ से कहाँ के लिए डिक्रीज होता है? आंसर होना चाहिए इक्वेटर टू पोल जाने पर या प्लेन से हाई माउंटेन की तरफ आने पर। और अगर वो क्वेश्चन में लगाता है कि टेम्परेचर इंक्रीजेज प्रोग्रेसिवली टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तब फिर आपका आंसर होना चाहिए रिवर्स में, फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, और यू कैन से फ्रॉम हाई माउंटेन टू प्लेन रीजन। क्लियर हुआ? बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर नीट के लिए। नाउ अगर वेरिएशन की बात करें तो आपको पता लग गया कि कहाँ से वेरीज होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर सब जीरो लेवल से भी चलता है पोलर रीजन से, और फिर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कहाँ पर? हाई एल्टीट्यूड ट्रॉपिकल डेजर्ट में समर के दिनों में। क्लियर बात हो गई? नाउ
Why it is more relevant? Because our body, all the physiological functions of the body of the organism is enzyme dependent, and we know that temperature can affect the what? Kinetic of enzyme. So it is a most ecologically relevant environmental factor, and on the basis of their tolerance power, the organisms are classified under the two categories. Number one, eurythermal, means that those organisms which can tolerate wide range of the temperature, they are known as eurythermal, and those organisms which can tolerate narrow range of the temperature, they are known as stenothermal. So this is all about the first abiotic, or you can say non-living factor of the ecosystem. Clear? Now we move to the water. It is also very important, or you can say next important ecological abiotic factor of the ecosystem. क्यों? इसलिए because life is unsustainable without water. बिना जल के, बिना पानी के लाइफ का होना इम्पॉसिबल है, इसलिए ये सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. लाइफ इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर. सेकंड चीज़, जो वाटर किसी एरिया में है, द अमाउंट ऑफ वाटर इट डिटरमाइन द क्या उस एरिया की प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, वहाँ पे प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा बच्चों? अमाउंट ऑफ वाटर इन एन एरिया डिटरमाइन द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स. क्लियर बात है? अब सवाल उठता है, एक वाटर की क्वालिटी के लिए क्या क्या पैरामीटर यूज होते हैं. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट. स्टार्ट हो गया नीट का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाटर के पोर्शन से, कि वाटर क्वालिटी इज डिटरमाइंड बाय पीएच वैल्यू, सैलिनिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. किसी भी एक्वेटिक वाटर बॉडी में जो वाटर की क्वालिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स लिए जा सकते हैं. फर्स्ट इज द pH value, second is the salinity, and third is the temperature of the water. You know that these three, which one? pH value, number second one is the salinity, and third is the temperature of the water. These three are the parameters which used to determine the water quality, of a aquatic water body. ठीक है स्टूडेंट, जिस तरीके से यहाँ सैलिनिटी की बात हुई है, अभी हमने टेम्परेचर में यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल वर्ड यूज़ किया था, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर वर्ड यूज़ होगा यूरी हैलाइन एंड स्टीनो हैलाइन. क्या आपने समझा? आपने ये समझा कि जब यूरीथर्मल वर्ड यूज करते थे तब आप बोलते थे दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर नोन एज यूरीथर्मल, एंड दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर नोन एज स्टीनोथर्मल. सेम हियर, हैलाइन वर्ड इज यूज फॉर सैलिनिटी. स्टूडेंट, हैलाइन वर्ड इज यूज फॉर salinity. Now the definition of euryhaline, those organisms which can tolerate wide range of salinity is known as euryhaline, and those organisms which can tolerate narrow range of salinity, answer is stenohaline. The answer is stenohaline, not thermal. Here I have written this thermal. Stenohaline क्या हो जाएगा बच्चों? Stenohaline. And those organisms which can tolerate wide range of salinity, euryhaline. Those organisms which can tolerate narrow range of salinity, stenohaline. स्टीनो के लिए नैरो रेंज लगाइए, यूरी के लिए वाइड रेंज लगाइए. हैलाइन लगाओ तो सैलिनिटी पे जाइए और थर्मल लगाओ तो टेम्परेचर पे आइए. बात समझ पाए आप? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट इसमें नीट में मिला? वाटर क्वालिटी के लिए कौन कौन से पैरामीटर हैं? पीएच वैल्यू, सैलिनिटी एंड टेम्परेचर. क्लियर हुआ? नाउ
वाटर का अमाउंट किसी रीजन में क्या डिटरमाइन करता है? वहाँ की प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट। क्लियर बात हो गई? तो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर, द सेकेंड एवर्टिक factor. Now we are moving towards the third ecological, or you can say evotic factor of the ecosystem is the light. Is the light. Listen to me carefully. The light is very essential. The ultimate source of energy in an ecosystem is sunlight. The first important neat question. The sunlight energy is the ultimate source of energy for ecosystem. Why it is a ultimate source of energy? Because green plants prepared their own food material, or you can say autotroph prepared their own food material with the help of the sunlight, and as byproduct the oxygen is liberated out. और क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, और उस ऑक्सीजन को ही आप कह देते हैं लिविंग गैस, जिससे लाइफ मिल रही है आपको। क्लियर बात हुई? तो आपने देखा कि लाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आल्सो, बिकॉज ऑटोट्रॉफ्स यूज दिस लाइट फॉर व्हाट? फॉर फोटोसिंथेसिस, and as a result of photosynthesis the O2 is evolved. 6CO2, 6H2O, sunlight, chlorophyll, then 6C6H12O6 food plus 6O2 is the chemical reaction during the photosynthesis. So the byproduct oxygen is evolved. That's why it is very important, and autotrophs use this sunlight, which is the ultimate source of the ecosystem. Note down, ultimate source of the ecosystem is the sunlight, is the most important neat question. किसी भी इकोसिस्टम के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट है। क्लियर हुआ? बात करते हैं छोटे छोटे हर्ब्स और श्रब्स की। बच्चों, जो हर्ब्स और श्रब्स हैं ये बड़े बड़े ट्रीज से ओवरशैडोड रहते हैं। तो जब ये ओवरशैडोड रहते हैं तो भगवान ने इनको एक गिफ्ट दे दिया कि दे कैन यूज या दे कैन सर्वाइव अंडर द लो लाइट कंडीशन. Under the low light condition means that herbs and shrubs which are overshadowed by the large tree, they can prepare their food material, they can make their food material by the photosynthesis, and they utilize a very low condition of the light, very low condition of the light. This is a gift for herb and shrub. क्लियर बात है? आगे बात करता हूँ प्लांट्स के केस में। जो लाइट है, जो लाइट का ड्यूरेशन है, जो लाइट का फोटो पीरियडिज्म है, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर फ्लावरिंग, क्योंकि प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है इट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तभी आप पढ़ते हैं शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट. That's why light is important for plant. Not only for plant, for animals, the diurnal and seasonal changes in intensity and duration of light. मेरी बातों पे ध्यान दीजिए. In case of animals, the diurnal and seasonal variation in intensity and duration of light is the clue for what? For foraging activity. फॉरेजिंग वर्ड का मतलब बच्चों होता है कि एनिमल्स क्या करते हैं, जो अपना वाइल्ड फूड मटेरियल की सर्च में इधर उधर माइग्रेट करते हैं. दिस इज नोन एज फॉरेजिंग एक्टिविटी, FORAGING, फॉरेजिंग एक्टिविटी, एंड रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी. आपने देखा होगा जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करती, सीजनल माइग्रेशन करती हैं. सो लाइट एंड इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एनिमल्स एज द लाइट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर प्लांट photosynthesis as well as for flowering. So in case of animals, the diurnal and seasonal
intensity and duration of light is the clue for various activities like foraging activities, for search of food, like reproductive activities, for mating purpose, and third one is the migratory, means that to avoid the stressful condition, मोर हॉस्पिटाइल कंडीशन की तरफ ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करता है, जैसे कि देखने को मिलता है इन केस ऑफ साइबेरियन बर्ड्स। क्लियर हुआ? सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइट। नाउ द लास्ट फैक्टर इज द सॉइल, एंड फॉर द सॉइल वी नो दैट आई वुड लाइक टू rub this portion for the soil. You know that the most ecological relevant environmental factor is the answer is what? Temperature. Now here I am going to discuss the last abiotic factor is the soil. Beta, you know that the nature and property of the soil, it depend upon two things. What? Number one, climate, means that climatic conditions के ऊपर depend है, and number two is the weathering प्रोसेस, सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। तो किसी भी जगह की जो सॉइल है उसका नेचर और उसकी प्रॉपर्टी बच्चों किस चीज़ पे डिपेंड होती है? उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड होती है क्लाइमेट के ऊपर और वेदरिंग प्रोसेस के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर और वेदरिंग प्रोसेस के ऊपर। क्लियर बात हो गई? अब सॉइल का जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ग्रेन साइज एंड देयर एग्रीगेशन, मैंने तीन वर्ड यूज किए, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, कॉमा, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन, मैंने तीन वर्ड यूज कर दिए, कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन। ये क्या डिटरमाइन करते हैं? दे डिटरमाइन द परकोलेशन। व्हाट डू यू मीन बाई परकोलेशन? परकोलेशन का मतलब हो गया बच्चों इस सॉइल से वाटर किस तरीके से मूव करेगा, इस क्वालिटी पर। क्लियर बात हुई? वाटर का सॉइल के पार्टिकल के बीच से रिसना कहलाता है परकोलेशन। और परकोलेशन किस चीज़ पर बच्चों डिपेंड है? कंपोजिशन ऑफ सॉइल and grain size and their aggregation। किस लिए? For percolation as well as for water holding capacity, तो किसी भी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस बात पर डिपेंड है? किसी भी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड होती है कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स एंड ग्रेन साइज एंड देयर एग्रीगेशन। किस तरीके के इसमें सॉइल पार्टिकल्स हैं? अगर क्ले पार्टिकल्स ज़्यादा हैं मीन्स दैट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ मोर, अगर सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा हैं मीन्स दैट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ वेरी लो। क्लियर? तो द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ग्रेन साइज एंड देयर एग्रीगेशन डिटरमाइन व्हाट? क्या डिटरमाइन करते हैं? परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्लियर बात हुई? बच्चों सॉइल का नेचर और प्रॉपर्टी, किस तरीके का वेजिटेशन होगा? दिस वेजिटेशन इज डिपेंड अपॉन थ्री फैक्टर्स। बहुत ध्यान से देने की ज़रूरत है। देयर आर थ्री फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेजिटेशन सपोर्ट। किस तरीके से वेजिटेशन को सपोर्ट करेगी सॉइल, इसके लिए भी बच्चों तीन फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर मीन्स दैट पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल, pH value of soil कि either it is acidic soil or it is alkaline soil। then second one is the उस particular region में mineral composition of the soil। ठीक है, सॉइल में कैसा मिनरल कंपोजिशन है इस बात पर भी डिपेंड करेगा वेजिटेशन कि इसके अंदर कैसा मिनरल कंपोजिशन है। और थर्ड वन थिंग इज
टोपोग्राफी, क्या मैंने वर्ड यूज किया? टोपोग्राफी। बच्चों टोपोग्राफी वर्ड को समझते हैं। कोई भी सॉइल है, कोई भी लैंड है, उसके नियर बाई में जो फिजिकल थिंग्स हैं, जैसे माउंटेन, जैसे रिवर, दीज आर नोन एज टोपोग्राफी। दिस इज नोन एज टोपोग्राफी। तो किसी भी सॉइल के अंदर कौन कौन से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो उसके वेजिटेशन के लिए हैं इम्पॉर्टेंट, या वेजिटेशन का उसका वेजिटेशन डिपेंड होता है। तो वेजिटेशन इट डिपेंड अपॉन द सॉइल पीएच वैल्यू, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी। क्लियर बात हो गई। और परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस बात पे डिपेंड होती है? कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन। क्लियर बात हो गई। नेचर एंड प्रॉपर्टी किस बात पे डिपेंड हो गई? क्लाइमेट एंड वेदरिंग प्रोसेस पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉइल। एंड इन केस ऑफ वाटर देयर आर 2 टर्म्स, यूरीहेलाइन, स्टीनोहेलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट. Again, euryhaline means that those organisms which can tolerate wide range of temperature, wide range of salinity. यहाँ पे हेलाइन वर्ड है तो सैलिनिटी लगाइए. स्टीनोहेलाइन विच कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी. सेम इन केस ऑफ द टेम्परेचर. मैंने टेम्परेचर में भी बात की थी. यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर नोन एज eurythermal, and those organisms which can tolerate narrow range of the temperature, they are known as stenothermal. तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में जो सेकंड लेक्चर था हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का, उसमें इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर्स को देखा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी कि इन चारों एबायोटिक फैक्टर में जो मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर था बच्चों, वो था टेम्परेचर. क्या था? टेम्परेचर था, जो कहाँ डिक्रीज होता था प्रोग्रेसिवली, कहाँ से किधर की ओर जाने के लिए? इक्वेटर टू पोल, और यू कैन से प्लेन टू द माउंटेन हाइट. अगर माउंटेन की तरफ जा रहे हैं प्लेन से तो डिक्रीज होगा प्रोग्रेसिवली. और इंक्रीज कैसे होगा? रिवर्स करिए कंडीशन को. मैंने कहा था ना, आप क्या करिए, आप पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आइए. नाउ द टेम्परेचर इज इंक्रीज प्रोग्रेसिवली, बहुत प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करेगा. आप इसी तरह माउंटेन टॉप से आइए प्लेन की तरफ. नाउ द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस. इन बातों पे आपको बहुत ध्यान देना है अपने मेडिकल के लिए. क्लियर बात हो गई. और आप जानते हैं कि द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी इज टोटली डिपेंड अपॉन द एंजाइम्स, एंड एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर. एंड माय डियर स्टूडेंट, now these enzymes are depend upon the temperature. Temperature can affect the kinetic of enzyme. This is the main reason the temperature is the most ecological relevant environmental factor among these 4. क्लियर हुई बात? आपके आ गई बात समझ में? थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे. दिस इज द सेकेंड लेक्चर विच इज बेस्ड ऑन द एबायोटिक फैक्टर्स, और यू कैन से नॉन लिविंग फैक्टर्स इन द इकोसिस्टम. क्योंकि इकोसिस्टम 2 तरीके के कंपोनेंट का बना है, नॉन लिविंग एबायोटिक एंड लिविंग इज बायोटिक. इन बायोटिक कंपोनेंट्स की हम चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में जब हम इकोसिस्टम को डिटेल में पढ़ाएंगे. आज आप इस ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में देखिए इन एबायोटिक फैक्टर्स को. थैंक यू वेरी मच. आपने इसमें नीट के क्वेश्चन देखे, मैंने कहाँ कहाँ पे ज़्यादा जोर दिया, उन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा. बेस्ट ऑफ लक. हैव अ नाइस डे. थैंक यू वेरी मच.